اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ نہایت ہی بلیغ تھا، نہایت ہی جامع تھا، نہایت ہی اچھوتا خطبہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جب آپ کا خطبہ سنا ہے تو آپ کے خطبے کے سننے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ سارے صحابہ کے دل ڈر گئے، ایسا بلیغ اور جامع خطبہ تھا، اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایسا خطبہ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ کوئی الوداعی خطبہ دے رہا ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، تو آپ ہم لوگوں کو کچھ باتوں کا وصیت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اور سب سے پہلی بات جو کہی وہ یہ تھی، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، کہ تمہیں میں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ فِي الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچو، دین میں نئی نئی باتیں پیدا مت کرو، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر نئی بات جو دین کے نام سے شروع کی جائے گی، جو دین کے نام سے پیدا کی جائے گی اور جسے دین سمجھا جائے گا، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ان باتوں کو تم اپنے عضو علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے مضبوط تھام لو، اپنے دانتوں سے ان باتوں کو پکڑ لو، اور ان میں پکڑے رہو، اور اس سے چمٹے رہو، دین میں لگے رہو، دین سے الگ ہونے کی کوشش مت کرو، کیونکہ میرے بعد جو کوئی زندہ رہے گا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد تم میں سے جو بچ جائے گا، جو لوگ زندہ رہیں گے، وہ اپنے درمیان بہت اختلاف دیکھیں گے، بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ ایسی صورت میں تمہارے اوپر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا ہے اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پر عمل کرنا ہے، تب جا کر کے کامیابی ملے گی، نجات ملے گی۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے بتلائی، اس کے بعد بھی ہم دین سے بیزار ہو رہے ہیں، دین سے ہمارے اندر محبت نکل جا رہی ہے، دین کی چاہت ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی بھی اسلام کے مقابلے میں کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا اور اس مذہب کو اختیار کرنے کے بعد اپنی کامیابی تلاش کرے گا، یہ چاہے گا کہ کامیابی ہمیں اسلام کے بجائے کسی اور مذہب میں ملے، کسی اور دھرم میں ملے، کسی اور ملت میں ملے، اور اس تہذیب کو، اس ثقافت کو، اس تمدن کو، اس طریقے کو اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ شخص ایسا ہے جو دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اسی لیے ان باتوں کے جاننے کے بعد بھی آج ہمارے اندر ارتداد کی وبا، ارتداد کی ہوا اور ارتداد کی بیماری ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ارتداد کہتے ہیں کہ ایک آدمی پہلے سے مسلمان تھا، لیکن کلچر ایسا ملا، سماج ایسا ملا، معاشرہ ایسا ملا، تہذیب ایسی ملی کہ وہاں پر اور دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے تھے، اسلام کا ماننے والا
दूसरे मज़ाहिब से मुतासिर हुआ और उसने इस्लाम को छोड़ दिया, ये इस्लाम को जिसने छोड़ा है इसका नाम इर्तिदाद है। इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब को इख्तियार करना, इसका नाम इर्तिदाद है। और ये इर्तिदाद तेजी के साथ हमारी नस्लों में आ रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुर्तद्दीन के बारे में कहा है कि वमन यर्तदिद मिनकुम, जो तुम में से इर्तिदाद इख्तियार कर ले, इर्तिदाद इख्तियार करने वाले होंगे, उनका हाल ये होगा कि इर्तिदाद करेंगे और उनके अंदर कुफ्र होगा, कुफ्र उनके अंदर आ जाएगा कि इस कुफ्र के आने की वजह से उनका मामला ये होगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे और उनके दुनिया में जितने भी काम उसने नेकी के किए होंगे, हाबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत के सारे आमाल अल्लाह तबारक व तआला बेकार कर देगा। अगर कोई आदमी मुर्तद होने से पहले नेकी का काम किया है या मुर्तद होने के बाद नेकी का काम किया है, तो ये नेकी वाला काम उसे कोई फायदा नहीं देगा और इस इर्तिदाद के नतीजे में वो जहन्नम की आग में जाएगा और जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, फिर उससे कभी निकल नहीं पाएगा। ऐसी तबाही और ऐसी बर्बादी है इर्तिदाद के नतीजे में। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में इर्तिदाद आया हुआ है, इसकी वजह क्या है? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने चंद असबाब की तरफ रहनुमाई की है। इर्तिदाद की वजह क्या क्या है, उन वजूहात की तरफ एक किताबचे में मुस्लिम पर्सनल के जो जिम्मेदारान हैं उन लोगों ने हमारी रहनुमाई की कि इर्तिदाद के असबाब में से ये है। उनमें पहला सबब को एजुकेशन सिस्टम, मखलूत निज़ाम तालीम। दूसरा सिस्टम घरों में तरबियत का फुकदान, यानी घरों में बच्चों की तरबियत नहीं हो रही है। तीसरा सिस्टम औरतों को, बेटियों को, लड़कियों को मर्दों के बराबर निकाह, मीरास और दूसरे चीजों में हुकूक न देना, उनको नजरअंदाज कर देना। चौथी वजह निकाह में ताखीर करना। पांचवी वजह हमारे पास में कोई मुस्तकिल ऐसा निजाम तालीम नहीं है जिसकी वजह से इन चीजों पर रोक लगाई जाए। ये 5 असबाब उन्होंने बयान किए हैं, उन लोगों ने बयान किया कि ये 5 असबाब है हमारी तबाही के, और हमारे अंदर जो इर्तिदाद आ रहा है उस इर्तिदाद के आने की वजह ये सब है। पहली वजह मैंने ये कहा कि मखलूत निजाम तालीम। मखलूत निजाम तालीम जहां एक ही बेंच में, एक ही क्लास में, एक ही साथ एक जवान लड़की और एक जवान लड़का बैठ करके तालीम हासिल करते हो और पढ़ाने वाले भी वही लोग हो जिनके जहन में गंदगियां भरी हो, जिनके जहन गंदे हो, वो तालीम दे रहे हो और हम उस तालीम को तरक्की का जरिया, कामयाबी का जरिया, निजात का जरिया, बढ़तरी का जरिया और दुनिया में आला से आला मकाम हासिल करने का जरिया समझ रहे हैं। और इसी तालीम की वजह से आज हमारे माशरे में इर्तिदाद आ रहा है। मैंने अभी एक बात कही थी कि इकबाल ने कहा था कि तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए वो लाइन तो जिधर चाहे उधर फेर। तो तालीम के जरिए से जहनों को, दिमागों को बदला जाता है। तालीम एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से हम जिस बात को लोगों के जहन में बिठाना चाहते हैं, तालीम वो जरिया है, वो हथियार है कि उस चीज को हम तालीम के रास्ते से लाते हैं और लोगों के जहनों दिमाग में उस बात को बिठा देते हैं और वो बात सदियों तक दिल में बैठी रहती है। इंसान मर जाता है लेकिन तालीम के रास्ते से जो बातें उसके जहनों में आती है, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, वो बात हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो तालीम हासिल करना
हमारा फरीजा है, हमारे लिए जरूरी चीज है, अल्लाह का हुक्म है। बल्कि मैं ये कहता हूं कि कुरान का पहला हुक्म और कुरान की पहली वही, जिसके बाद अल्लाह के नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, उसमें भी पहली बातें जो थी वो यही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पहली बात अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को जो सिखला रहा है वो तालीम है, और इस तालीम को हासिल करना जरूरी है। लेकिन को एजुकेशन सिस्टम इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, हमारे माशरे के लिए जहर है। और इस तालीम के सिलसिले में मैं ये बतलाऊं कि अगर कोई आदमी इस बात को समझ नहीं पा रहा है और वो ये समझता है कि ये तरक्की का जरिया है और हम मजबूर हैं ऐसे स्कूलों में भेजने के लिए, तो ये हमारी मजबूरी अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक कोई काबिल कबूल नहीं है। ऐसी कोई मजबूरी हमारे पास में नहीं है कि हम एक ही साथ एक अजनबी लड़के के साथ अपनी बेटी को बैठा दे और उनके साथ तालीम हासिल करवाएं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, बल्कि इस्लाम तो यहां तक कहता है, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि औरतों और लड़कियों की तालीम के बारे में आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूं कि अगर पढ़ाने वाले हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हो, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये कितने बड़े वली हैं अल्लाह के, तकरीबन 70 से ज्यादा सहाबा किराम से उन्होंने इल्म हासिल किया है। और एक रिवायत से यह भी मालूम होता है कि हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो ज़ौज-ए मुतहरा है, उम्महातुल मोमिनीन में से है, उन्होंने इस बच्चे को दूध पिलाया है। ऐसे बच्चे और ऐसे वली बनकर के निकले हैं जिनकी विलायत का शोहरा है, चर्चा है। उन्होंने कहा बायजीद बस्तामी ने कि अगर पढ़ाने वाले हसन बसरी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, राबिया बसरी इस्लाम की तारीख में जो चंद खवातीन का नाम नुमाया है और जिनकी शराफत, जिनकी बुजुर्गी, जिनके तकवे का चर्चा है, उनमें से एक है। निहायत ही परहेजगार, निहायत ही मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाली बीवी है, अल्लाह से हमेशा राब्ता रखने वाली खातून है। उनके शौहर जब तक बाहयात थे रोजाना इशा के बाद गुस्ल करती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, उसके बाद अपने शौहर के पास जाती थी, शौहर से कहती थी आपको मेरी जरूरत है, आपको मुझसे कुछ खिदमत लेना है। अगर शौहर कहते कि हाँ मुझे तुमसे काम है या कुछ खिदमत लेना है, तो वो उनके पास रुक जाती। और अगर शौहर कहते कि नहीं इस वक्त तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो वो खातून कहती कि फिर आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में, अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ी हो जाऊं। वो इजाजत देते और पूरी रात क़याम की हालत में, सजदे की हालत में और नमाज की हालत में गुजारने वाली खातून थी। उन्होंने कहा बायजीद बस्तामी ने कि अगर पढ़ाने वाले हसन बसरी जैसे बुजुर्ग हो और पढ़ने वाली हसन राबिया बसरी हो और बगैर पर्दे से पढ़ाया जा रहा हो, तो मैं कहता हूं कि तुमने एक बुजुर्ग के सामने नहीं बल्कि एक शैतान के सामने अपनी बेटी को भेज दिया है। आप अंदाजा लगाएं इस्लाम की खूबी और इस्लाम की सच्चाई और इस्लाम की बरतरी कितनी है, और इस्लाम कितनी बातों का ख्याल करता और कितने बारीक बारीक नुक्तों को देखता है। और हम धड़ल्ले के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और फिर हम ये रोना रोते हैं कि हमारी बेटी और उसका बेटा और ये और वो सारे ड्रामे जो मुआशरे में रचे जा रहे हैं उसका हम रोते रहते हैं। तो ये सारी बातें हमने अपने अंदर पैदा की है, इसके मुहर्रिक हम हैं, हमने ही ये सारी चीजों को शुरू किया है। हमें पढ़ाना है और यकीनन पढ़ाना है, लेकिन ऐसी तालीम, मैंने पिछले बार भी ये बात कही थी कि वो तालीम जो एक मुसलमान को अल्लाह से दूर कर दे,
रसूलुल्लाह से दूर कर दे, वो तालीम नहीं एक फितना है। इकबाल ने कहा था, तालीम भी, अमलाक भी, औलाद भी फितना। तालीम भी, औलाद भी, अमलाक भी फितना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। नाहक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना। शमशीर क्या है, नारे तकबीर भी फितना। अगर हमारी तकबीर, हमारी तहरीर, हमारी तहलील, हमारी आवाज का मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में दहशत पैदा करना है, तो ये तकबीर भी फितना ही की शक्ल में नमूदार होती है। तो हमें तालीम हासिल करना और करवाना जरूरी है, लेकिन इन बातों की रियायत करते हुए कि कहीं इस तालीम के नतीजे में हमारी बेटियां हमारे हाथों से निकल ना जाए, हमारी बेटियां हमारे कब्जे में ना रहे। आज मुसलमानों के घर में पैदा होने वाली बेटी थाने में जाकर के रिपोर्ट करती है कि हमें अपने बाप से डर है, हमें अपने बड़े भाई से डर है, हमें अपने रिश्तेदारों से डर है, हमें सेफ्टी चाहिए, वरना अगर हम अपने घर में जाएंगे तो वो हमें मजबूर करेंगे, हमें अपनी चाहत के मुताबिक शादी करने नहीं देंगे। ये वाकयात रोनुमा हमारे ही माशरे में हो रहे हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं है। ये सारी बर्बादियां तालीम के रास्ते से आई है। शायर ने कहा था कि हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब तो शमे अंजुमन है पहले चरागे खाना थी। तो हमारी तालीम हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को कहां लेकर के जा रही है, ये हमें देखना होगा। ऐसी तालीम से हमें अपने आप को बचाना होगा और इसके लिए एक मुहिम चलानी पड़ेगी। तालीम से हम अपने बच्चों को और बच्चियों को रोक नहीं सकते हैं और रोकना मुनासिब और जायज बात भी नहीं है, लेकिन उसके मुतबादिल कोई ऐसी शक्ल पेश करनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करें और इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। मैं बारहा ये बात कहता हूं, कम से कम साल में 2-4 बार तो ये बात जरूर कहता हूं कि अपना स्कूल, अपना निजाम तालीम, अपना सिस्टम हर हाल में जरूरी है। हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक साहब ने कहा कि हजरत मैं इसाले सवाब के लिए कोई काम करना चाहता हूं। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मैं खालिस मदरसे के आदमी हूं, मैं मदरसे में पला बढ़ा हूं, मैं एक मौलवी हूं, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम स्कूल कायम करो। मदरसा कायम करना इसाले सवाब का जरिया है, मस्जिद तामीर करना इसाले सवाब का जरिया है, लेकिन इस दौर में स्कूल कायम करना मुसलमानों के लिए जरूरी अमल है, क्योंकि स्कूल ही के रास्तों से बगावत पैदा हो रही है, इल्हाद पैदा हो रहा है, इर्तिदाद आ रहा है, तालीम ही के रास्ते से तबाही और बर्बादी आ रही है। लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं है। हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर कबीले में इस बात की कोशिश और मुहिम चलानी पड़ेगी कि हर इलाके में अलग अलग स्कूल हो, प्ले स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन की का निजाम हमारे स्कूलों में हो। लड़कियों के लिए अलग निजाम हो, लड़कों के लिए अलग निजाम हो। जिस दिन मुसलमान ये ठान लेगा उस दिन उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और इज्जत के साथ आज हम किसी स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला करवाते हैं तो उसका सिस्टम चलता है। वो कहते हैं कि आपकी बेटी हमारे स्कूल में आएगी लेकिन हिजाब पहन करके नहीं आ सकती है। हमारे स्कूल में आएगी तो उसे प्रार्थना में हाथ जोड़ना पड़ेगा, उसे प्रार्थना को पढ़ना पड़ेगा, उसे जो कुफरिया अल्फाज कहलवाए जाएंगे उसे कहना पड़ेगा। अगर आर्या समाज के स्कूलों में डीएवी और डीपीएस में हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो आग का हवन करवाया जाता है और हमारे बच्चे करने पर मजबूर होते हैं, आग जलाई जाती है और आग के इर्द गिर्द सारे बच्चों को खड़ा किया जाता है और हमारा बच्चा पढ़ता है तो हम अपने बच्चे को वहां से हटा नहीं सकते हैं। और अगर हमारा स्कूल हो, हमारा निजाम तालीम हो तो फिर हमारा सिस्टम चलेगा। हम अपने बच्चों को इस्लाम के साथ साथ इन सारी बातों को सिखलाएंगे और दुनिया के रास्ते में उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम
ہم اس بات کا عزم کر لیں گے کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے، اس مہم کو چلانا ہے، اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے، اسے ہمیں ماننا پڑے گا۔ اور اگر نہیں مانیں گے تو آج تو صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، ان کے ساتھ نکاح کر چکی ہے۔ اگر ہم نے اپنے نظام تعلیم کو درست نہیں کیا اور اپنا اسکول نہیں بنایا تو یاد رکھیے یہ 8 لاکھ کتنی جلدی 16 میں اور پھر 32 میں اور پھر کروڑوں میں تبدیل ہو جائے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آئے دن یہ ساری باتیں ہمارے درمیان رونما ہو رہی ہے اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، لہذا ہم تمام لوگوں کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ آج ہر آدمی اسکول کے نام پر یہ کوشش کر لے اور تیاری کر لے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو مسلمانوں کی غربت، مسجدوں میں آ کر کے دیکھیے، مدرسوں میں جا کر کے دیکھیے، جب مدرسے کا چندہ ہو، مسجد کا چندہ ہو تو ہمارے پاس میں دینے کے لیے بہت مشکل سے 10-20 روپے نکلتے ہیں، لیکن بیٹی کی شادی ہوگی تو 5 لاکھ روپے کا ہال بک ہوگا، 5 لاکھ روپے کا ہوٹل صرف ہوگا، اور پھر کم سے کم 20 لاکھ روپے معمولی شادی میں خرچ ہو جائیں گے۔ وہاں پر ہماری مالداری نظر آتی ہے جو سراسر فضول خرچی ہے، اسراف ہے، اور قرآن نے کہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، ان کے ہرکارے ہیں۔ اپنی شادیوں کو نارمل بنائیے، معیاری بنائیے اور میانہ روی کے ساتھ شادیاں کیجیے۔ جو شادیاں فضول خرچی پر مشتمل ہے ان شادیوں سے اللہ کی برکت اور رحمت اٹھ جاتی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی شہرت، اپنا نام و نمود چاہیے، چاہے اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے کریں گے۔ غریب سے غریب آدمی معاشرے میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو فتنہ پھیلا ہوا ہے، اور شادیوں کے نام پر جو دھاندلی ہو رہی ہے، غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی میں اپنی بیٹی کی شادی کو شان و شوکت کے ساتھ انجام دینے کے لیے مسجدوں کے دروازے پر اور لوگوں کے در بدر ٹھوکریں کھا کر کے وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی شاندار شادی کریں۔ ہم نے معاشرے کو ایسا بنا دیا، تعلیم کے نام پر پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن شادی کے نام پر دوسرے فنکشنوں میں، دوسری تقریبات میں ہمارے پاس فضول خرچی کرنے کے لیے خوب پیسے ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے مالدار لوگ ہیں وہ اپنی شادیوں میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچائیں اور بچا کر کے قوم کے لیے ایک سرمایہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام ایسا ہوگا کہ دنیا سے ہم چلے جائیں گے، ہماری نسلیں آئیں گی، اور جب تک اسکول قائم رہے گا اور جب تک اسلام کے نظام کے مطابق تعلیم ہوتی رہے گی، ہمارے نام اعمال میں دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اس لیے یہ کام ہر آدمی اپنے لیے سوچے اور اس کے لیے دستور بنائے۔ دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ ہمارے گھروں میں تربیت کا نظام بالکل بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں ہو، کلیہ طور پر انکار کرنا بھی مناسب بات نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی نگرانی، اپنے بچوں کا خیال اچھی طرح کرتے ہیں اور اچھی طرح کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بچے کو یا بچی کو 4 سال 5 سال کی عمر میں کچھ ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو چھوٹا سمجھ کر کے، بچہ سمجھ کر کے، بچی سمجھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے 4-5 سال کی عمر میں اپنے بچے کو نظر انداز کیا ہے اور نظر انداز کرنے کی عادت پڑی رہی ہے، اتفاق سے وہ بچہ 12 سال کا ہو گیا، اب ہم اگر اس کی غلطی پر ٹوکیں گے وہ ہماری بات مانے گا نہیں، اس لیے کہ ہم نے بچپن میں اسے نظر انداز کیا تھا۔ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو کھیلنے کی عمر ہے۔ اور خاص طور سے میں یہ کہتا ہوں کہ بچیوں کے لباس کے بارے میں نہایت ہی حساس ہونا چاہیے۔ ہماری بچیوں کا لباس بالکل اسلامی ہو۔ چھوٹی سی بچی ہے 4 سال کی،
5 साल की, लेकिन उसका लिबास मस्तूर होना चाहिए जिससे जिस्म ढका रहे। यहां ऐसा नहीं, बल्कि जो शरई लिबास है, ऐसा लिबास पहनाने का जब आदि आप बचपन से बना देंगे तो इंशाअल्लाह आप आगे देखेंगे कि उसके सामने अगर हाफ आस्तीन वाली चीज आएगी तो वो उसे पहनना पसंद नहीं करेगी। अगर हमने अपनी बेटी को जींस पैंट और टी शर्ट पहनाया है 7 साल की उम्र में, तो 14 साल की उम्र में भी वो उसी को पहनना चाहेगी। ये तरबियत का निजाम हमारे घरों में ठीक नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, आज जो एक स्टाइल की शक्ल में जो चीजें हमारे सामने आई, फटे हुए कपड़े पहनने का, जिससे सतर नजर आता है, कहीं जांग पर कपड़ा फटा हुआ है, कहीं घुटने पर फटा हुआ है, कहीं और फटा हुआ है, सतर नजर आ रहा है। ये फैशन के तौर पर हमने मुआशरे में देखा, अपने बच्चों के लिए वही लिबास ला करके दिया। अब वो बच्चा जवान होगा तो जवानी में भी वैसा ही लिबास को पहनना पसंद करेगा। लिहाजा बचपन ही से उन्हें इन बातों का पाबंद बनाएं और इन बातों की ताकीद करते रहे। और बालों के सिलसिले में भी मैं अक्सर बोलता हूं कि बाल अजीब किस्म के तराशे और खराशे जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये कोई शरीफ आदमी का बच्चा है, लगता है कि किसी हैवान का बच्चा है जो हैवानियत का नमूना बना हुआ है। अजीब अजीब किस्म के कटिंग होती है और वो इज्जत के तौर पर और शरफ के तौर पर निहायत ही शानदार तरीके से बच्चा जुल्फे लहराता हुआ दोनों तरफ से बिल्कुल सफाचट होता है और सामने की जुल्फ लहरती नजर आती है और वो स्टाइल में चलता है। उसके वालिदैन उसे टोकते नहीं है और न टोकने के नतीजे में जवानी में भी वह ऐसे ही जुल्फ रखना पसंद करता है। लिहाजा बचपन में ही इन बातों की रियायत और इन बातों का ख्याल करना जरूरी है, ताकि हमारे घरों में जो तरबियत का निजाम हो वो बेहतर हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स खाना खा रहा था और वो बाएं हाथ से खाना खा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि दाएं हाथ से खाओ। उसने कहा मैं दाएं हाथ से नहीं खा सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दी कि खुदा करे तुम्हारा दायां हाथ कभी तुम्हारे मुंह तक नहीं पहुंचे। रिवायात में आता है कि मौत तक फिर कभी उसका दायां हाथ उसके मुंह तक नहीं पहुंचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही है तो साथ में ये भी कहा कि ये बाएं हाथ से खा रहा है मजबूरी की वजह से नहीं, तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से। फैशन में आजकल हम लोग भी बाएं हाथ से चाय का कप पकड़ते हैं या गिलास पकड़ते हैं और बाएं हाथ से शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने इतनी सख्त बात कही है कि अगर तुम्हारा बायां हाथ ही उठता है, दायां हाथ नहीं उठता है, तो खुदा करे तुम्हारा दायां हाथ कभी ना उठे। ऐसी तालीम जिस दीन में दी गई हो उसके बच्चों की हालत इतनी बुरी हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक बतलाया कि जब तुम खाने के लिए बैठो, हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आपके खादिम आपके साथ खाना खा रहे थे, छोटे बच्चे थे, हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, छोटे से बच्चे थे और उनका हाथ प्लेट में चारों तरफ घूम रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा कि बेटा अपने सामने से खाओ, चारों तरफ से मत खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओ। फिर वो कहते हैं कि मेरा उसके बाद नबी की इस तालीम के बाद फिर मेरा हाथ कभी भी प्याले में और कटोरी में घूमता नहीं था, किनारे से मैं खाता था और बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाता था। तो इन बातों की आदत हम अगर बचपन में अपने बच्चों को डालेंगे तो जवानी तक और बुढ़ापे तक और मौत तक वो इस आदत पर कायम रहेंगे। दस्तरखान का निजाम हमारे यहाँ अक्सर घरों में जाने का इत्तेफाक होता है तो कम ऐसे लोग होते हैं जो दस्तरखान बिछा करके खाना खिलाते हैं, वरना कहीं तो टेबल में या ऐसे ही मेज पर खाना रख दिया जाता है बगैर दस्तरखान के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि दस्तरखान में खाना खाया जाए और कोई चीज गिर जाए तो उसे उठा करके दोबारा खा लिया जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो लुकमा तुम्हारा गिर जाए उसे उठा करके खा लो, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे किस खाने में बरकत है।
اور तुम उस लुक्मे को शैतान के लिए मत छोड़ो, क्योंकि शैतान तुम्हारे ताक में लगा हुआ है कि कब तुम बरकत वाली चीज को छोड़ोगे और वो बरकत लेकर के चला जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों की तरबियत, बच्चों की तरबियत, बच्चों की तालीम पर इतनी तवज्जो दी है, और हमारे यहाँ से ये सारी तवज्जुहात धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। ये सारी तहजीबें, ये सारी सकाफतें हमारे पास से उठती चली जा रही है। नतीजा क्या हो रहा है, हम और आप देख रहे हैं।